So today we are starting with human geography. So physical geography studies the physical environment, and human geography the relationship between the physical geography and the human beings. So the spatial distribution of human phenomena and how they come together, the social and economic differences between different parts of the world, like what is there in the India, the social differences, the physical, the economics. So this is about the human geography. The what is the kind of human development in India, the Norway, US, the Bangladesh, in China, in Japan, the different kind of economics, the social, then the cultural aspects, the different tribes, their interaction, their studies. This is about the human geography. समझ में आया किस किस चीज को हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोल रहे हैं, कि इनकी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को हमें पढ़ना है. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बुक, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है, कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, हाउ द वर्ल्ड इज इंटरेक्टिंग, व्हाट इज द कल्चर फॉर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, how development is taking place in different, what is development actually mean for different type of different set of, what is development for me is very different for a tribe living in Andaman. ठीक है, so this is basically human geography. In this box, the different people have defined what they really mean by human geography in their perspective. So according to Redzel, human geography is the synthetic study of relationship between human society and earth surface, how the human society are interacting with the earth surface. According to Alan C. Sample, human geography is the study of the changing relationship between the unresting man with the unstable earth. So we are the unresting people and this is an unstable earth. ठीक है. Then there is a concept of naturalization of humans and the humanization of nature. तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं. एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. इस टेबल में एक बेंडा लिव्स, बेंडा के बारे में बताया गया है. बेंडा जो है एक अबुजमाद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया में रहता है. ठीक है, वो बेंडा के बारे में छोड़ दो, मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ. अंडमान का कोई बेंडा है, जैसे सेंट्रल इंडिया छोड़ दो, सेंटिनलीज के बारे में बात करते हैं. हैव यू हर्ड अबाउट द सेंटिनलीज न्यूज वेयर अ मिशनरी वेंट टू कन्वर्ट देम एंड देन they gave him a chance to live, and then the second time he went and then he died. Basically he wanted them to, show them the path of Jesus Christ, and he was a missionary, he wanted to convert them, but Sentinelese were a very primitive tribe. They have a very basic, or they have a very isolated kind of living. Okay, so everybody knows about Sentinelese. So the tribe in Andaman and Nicobar, so they have a very different kind of living, है ना. वो हमसे अलग रहते हैं. they do not have iPad or mobile phones or fancy gadgets. वो अपने अलग रहते हैं. उनकी एक ह्यूमनाइजेशन ऑफ, द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का एग्जाम्पल है वो वहीं पर ही खाते हैं, जो रहते हैं बिल्कुल ह्यूमन से, हमारी पॉपुलेशन से अलग रहते हैं. ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है, और उस एरिया में कोई भी किसी का भी जाना अलाउड नहीं है, नॉट इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कोई नहीं जाता है वहाँ पे. ठीक है, तो एक
जैसे बैंडा में क्या है कि वो छुपकर रहते हैं, उनका खुद का एक बैंडा का क्या था कि वो वहाँ पर अपना खाया पिया, उसने कुछ बेर खाए, कुछ चीज़ें खाई और फिर कुछ हर्ब्स ढूंढने चला गया क्योंकि वो उसके वहाँ पे फेयर लग रहा था और उस हर्ब्स को वो बार्टर सिस्टम में यूज़ करता है। सो सेंटिनलीज भी ऐसी है कि वो वहाँ पर ही उनकी खुद की कुछ फैमिली है, वो वहीं पर ही खाते पीते हैं जो उनको वहाँ पर नेचुरली मिलता है। अब कैसे खाते हैं क्या खाते हैं वो उनका खुद का सिस्टम है, वो नेचुरली उनका वहाँ पे रहता है, तो उनका एक पूरा सिस्टम नेचर से रिलेटेड है, वहीं पर ही रहते हैं, वो फुल न्यूड रहते हैं, वो पूरा नेचर से लेते हैं, उनका बाहर के उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट भी इसलिए करता है क्योंकि अगर वो बंदा जो मिशनरी था वो वहाँ पर आता भी तो हो सकता था कि उसके कांटेक्ट की वजह से वो कुछ ऐसी बीमारी भी दे सकता था जिन पे वो इम्यून नहीं थे, तो वो ससेप्टेबल कम्युनिटी भी है, वो ट्राइब ससेप्टेबल भी हो सकती है क्योंकि वो हमेशा अलग रही है। अगर वो किसी और बाहर वाले से होता, अगर वो सिंपल जुकाम या कोई ऐसा बाहर की चीज़ बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करते तो उन वो ससेप्टेबल कम्युनिटी है, ठीक है। इसलिए एक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है वो, एक कम्युनिटी उसका एग्जाम्पल है कि वो एकदम अलग रहते हैं। तो वो जैसे बेंडा ने देखा कि वो बाहर के लोग आए हैं और वो उन्हीं को ही ढूंढ रहे हैं, जैसे वो मिशनरी उन्हीं को ही ढूंढ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, तीर मारा। लेकिन बेंडा ने क्या किया कि बेंडा ने इस बॉक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि उन्हें ढूंढता हुआ आ रहा है, तो उनको कैमोफ्लेज आता था बेंडा को और उसके दोस्तों को। तो उसके पास में क्या था कि कैमोफ्लेज के कुछ पत्ते वत्ते उसके ऊपर थे या जो भी था, वो उन्हीं में ही ढल गया और ऐसा लगा कि जैसे वो ही पेड़ का एक हिस्सा था, ठीक है। इसे इसे बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, कि एक ऐसी ट्राइब ने नेचर को इस तरीके से एक्सेप्ट करा कि वो नेचर में ही घुल गया। सो उसका एक रियल एग्जाम्पल हमारा अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स है। समझ में आया व्हाट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन? अब सेंटिनलीज की एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा कि मैंने क्या बोलना चाहा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब एक एग्जाम्पल सोच के रखिए कि दिल्ली में है, इसी रूम में, ठीक है। अभी अभी तो टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन सोचिए कि जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मेरे रूम का टेम्परेचर 4 डिग्री या 5 डिग्री हुआ करता था। देन आई यूज्ड टू टेल यू कि रूम हीटर चलाने दीजिए मुझको, एंड आई हैड अ वेरी कॉइल वाला हीटर, ठीक है। एंड आई हैड दिस iPad with me where I used to take classes, okay, and I was sipping my coffee in a 4 degree temperature room where I had made this 20 degree kind of temperature in a Delhi, ठीक है। So this is an example of humanization of nature where living in a Delhi in winters 4 डिग्री सेल्सियस में मैंने अपने कमरे को 20 डिग्री सेल्सियस बना दिया बाय यूजिंग ऑल द गैजेट्स एंड IoTs एंड द ऑल दोज पावरफुल थिंग्स। तो इस एग्जाम्पल में एक विंटर टाउन का एग्जाम्पल दिया है वेयर दिस कैरी विमेन का कि वो अपने आप को फिट रखती है और विंटर्स में वो 50s में है लेकिन वो फिर भी बहुत फिट रहती है और 30s में बहुत सारी औरतों से अच्छी दिखती है क्योंकि उसने अपनी बॉडी को अच्छे से रखा हुआ है, क्योंकि उसके पास में जिम वाली चीज़ें हैं, जैसी टेक्नोलॉजी हो गई है। अपने विंटर में होने के बावजूद भी उसका रूम का टेम्परेचर ऐसा है, तो हमने नेचर के साथ में ऐसा कर दिया कि अब नेचर ह्यूमनाइजेशन का फॉर्म ले चुकी है। So this is basically human geography where we are playing with the unrest man with the unstable earth. So you have got two examples where one is taking a example of naturalization where the second example is the humanization of nature. ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए आपको? तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली यही था कि हम कैसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट ट्राइब, एक जो बहुत डेवलप्ड
सिविलाइज्ड काइंड ऑफ सोसाइटी का, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया, और एक बहुत प्रिमिटिव ट्राइब का, पर वो कैसे कैसे अपने अपनी लाइफ में कैसे कैसे अर्थ के सरफेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और कैसे एक ह्यूमन ज्योग्राफी डिफरेंट डिफरेंट जगह में कैसे कैसे क्या क्या प्ले कर रही है। तो इस पूरे उसको उन्होंने बताया कि हर किसी के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब कैसे डिफरेंट हो सकता है, और उसी को ही उन्होंने 2 एग्जाम्पल के थ्रू इस चैप्टर में समझाया। सो दिस इज व्हाट for your basic understanding of what we are going to read and understand by human geography. ठीक है, I hope you understood this chapter very well कि what we are going to study and what we understand by human geography and the different aspect of our linking and our interaction with human and its geography. ठीक है, so coming to the second chapter, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इस चैप्टर में यही है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, डेंसिटी कहाँ अलग है, कहाँ पे ग्रोथ है। सो बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रिडिक्टेबल है और आप जानते हो, बस उसे इसमें वैसे ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि आप ये बताइए कि माउंटेन में डेंसिटी ज़्यादा होगी या फिर प्लेन में ज़्यादा होगी डेंसिटी? नो नो, इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट चैप्टर इज़ फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, प्लेन में इम्पॉर्टेंट प्लेन में होगी बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ benefits and your communication, your transportation and the benefits around you, industries, when it comes to industry, school and facilities will be more in plain and less in mountain, because everything around mountain is difficult to maintain. Okay, so वही सब common sense को लेकर चलना है और उसी के बेसिस पे वो सब बातें कर रहे हैं। Pattern of population distribution in the world. Pattern of population distribution and density help us to understand the demographic characteristic of any area. The term population distribution refers to the way people are spaced over the earth's surface. 90% of the world population lives in about 10% of the land area. The 10 most populous country of the world contribute to 60%. So this is the chart where China, India and US, Indonesia, top 4 countries. अभी तो India number 1 पे है। ठीक है, this is the old chart. तो अभी डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि एवरी लैंड हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। उसके अकॉर्डिंग वो उन लोगों को उसके हिसाब से डेंसिटी डिसाइड होती है। दिस इज अ ग्राफ वेयर यू डोंट हैव टू नो अबाउट दिस ग्राफ एंड ऑल कि कैसे डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, बट डेंसिटी का एक फैक्टर होता है हाउ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड। दीज फैक्टर्स यू शुड नो, बेसिक फैक्टर्स है। एवरीबडी नोज कि हाउ द, जब हम घर लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं, अच्छी जगह हो, ये हो, वो हो, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, बेसिक चीज़ें हैं। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फर्स्ट इज द ज्योग्राफिक फैक्टर्स, कि पानी हो, गंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर गंगा वैली के आसपास क्यों घर बसे हैं, क्यों सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो यूपी, बिहार और बंगाल के इस गंगा घाट से होके जा रही है, और हड़प्पन की पूरी सिविलाइजेशन क्यों सिंधु रिवर के आसपास बनी, वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब भी हम हमारा आंसर लिखते हैं सबसे पहले आंसर यही आता है। अपकमिंग सेंसस होगा वो तो मोदी जी जानते हैं। ठीक है, तो सेंसस ऑब्वियसली डेफिनेटली दिस बुक इज मोर ऑफ मेंस पर्सपेक्टिव।
ठीक है, प्रीलिम्स में इसमें कम क्वेश्चन आते हैं। जब मैं बताऊँ आगे आगे मैं करूँगी तो बोलूँगी मेंस मेंस मेंस। सो दिस इज अ बुक, दीज टू बुक्स आर ऑफ मेंस and 11th is a more of prelims. So I am not telling you कि do not read this book for prelims. क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस पर्सपेक्टिव से है, तो आपको इसमें मेंस में ज़्यादा चीज़ें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले पानी। ठीक है, तो बेदिंग के लिए, कुकिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, नेविगेशन के लिए, एवरीथिंग इज अबाउट वाटर। सेकेंड इज लैंड फॉर्म्स, plains and gentle slopes has more weightage when it comes to mountainous area. ठीक है, थर्ड इज द क्लाइमेट। जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में थे, उन्होंने अपना जो घर था, कभी इंडिया को अपना घर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि उनका क्लाइमेट जो था वो हमारे क्लाइमेट से बहुत डिफरेंट था। वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड उनका ब्रिटिश क्लाइमेट था। साउथ अफ्रीका में वो जाके इसलिए बस गए क्योंकि वहाँ पे मेडिटेरेनियन और ब्रिटिश क्लाइमेट का मिक्स था, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा था। अभी वो जो उनको सबसे अच्छा लगा, जो चीज़ें उन्होंने सबसे ज़्यादा घेरी, वो थी डलहौजी, मसूरी, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ब्रिटिश क्लाइमेट से मिलता जुलता था। ठीक है, सो क्लाइमेट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो हमें अपना नहीं पाए। सो क्लाइमेट इज़ ऑल्सो कि सब लोग अच्छी अच्छी जगह जाना चाहते हैं, कोविड ख़त्म हुआ, सब मसूरी पहुंच गए। सो क्लाइमेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। सॉइल जहाँ पे फर्टाइल होती है, गंगा वैली, यू कैन गिव दैट एग्जाम्पल। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जहाँ पे मिनरल रिच होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक चीज़ें अच्छी होती है वो भी। अर्बनाइजेशन, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे पुल फैक्टर, दिस इज जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे स्कोप ज़्यादा होता है एम्प्लॉयमेंट का, दैट इज़ अ पुल फैक्टर, डेंसिटी ज़्यादा होने का। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। अब इस बॉक्स में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात हुई है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात हुई है, दैट दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड रेट। तो नेचुरल ग्रोथ क्या होती है कि ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ज़्यादा बर्थ हो रहा है और कम डेथ हो रही है, तो वो नेचुरल ग्रोथ हो रही है। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि कितनी बर्थ हुई, कितनी डेथ हुई, फिर कितना माइग्रेशन इन हुआ और कितना माइग्रेशन आउट हुआ, उसका टोटल को, उस टोटल को बोलता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज what we call actual growth of population, where we calculate the actual birth, death, immigration and emigration. Now here you write important for both prelims and mains. ठीक है, माइग्रेशन, बर्थ और डेथ के अलावा हम ग्रोथ रेट कैसे, किससे पता चलता है कि कितना माइग्रेशन इन प्लस आउट मिलाकर कितना हुआ। ठीक है, द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन
वही है, द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम प्लेस ऑफ origin and the place they move to the place of destination. The migration may be permanent, temporary, seasonal, from rural to rural, rural to urban, urban to urban. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है your current, I'll send you the current thing where you'll have to write for your mains and prelims कि रूरल टू रूरल सबसे ज़्यादा है, रूरल टू अर्बन सीजनल ज़्यादा है, विमेन का सबसे ज़्यादा कहाँ जा रही है, मैन सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, विमेन सबसे ज़्यादा जा रही हैं या मैन सबसे ज़्यादा जा रहे हैं. ठीक है, सो सम डेटा एंड फैक्ट्स यू हैव टू मग अप